Good morning, class 8 students. How you all are doing today? Students, we have started your chapter number 2 already and we have covered topic till harmful bacteria. Today, we are starting disease caused by microorganisms and viruses. We have already learned about these diseases which are caused by microorganisms and viruses in your previous video. So for a quick revision, about all the diseases caused by microorganisms and viruses, we are displaying a chart to understand the diseases they are causing microorganisms and what are the general ways to prevent that disease. So this will be easy for you to understand with the help of this chart. Children, our next topic is prevention of diseases. Means how we can stop the spread of the disease or how we can protect ourselves from any sort of disease. So under the prevention comes first how we can prevent the disease by taking proper medicines. If we are infected by any microorganisms, if there is any sort of disease, then what we need to do, we need to take medicine for that microorganism or about that concerned disease. Second, by killing the microorganism. If possible, what we can do, we can kill that microorganism. Like we need to cook our food before eating. We should avoid eating raw vegetables and fruits. If there is any sort of disease spreading in that particular moment, then what we need to do, we need to eat only the cooked food and vegetables. Third, by preventing growth of that microorganism. Like you know very well during rainy seasons, जो मलेरिया का हम बोलते हैं कि we should not store water during rainy seasons in any open areas. तो उस दौरान अगर कहीं हमको वाटर स्टोर करा हुआ दिखता है तो what we need to do, हमें उससे खाली कर देना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, वहाँ चांसेस हैं मलेरिया के स्प्रेड होने के. लास्ट, बाय प्रोटेक्टिंग फूड मीन्स हमें फूड जो है वो कवर्ड फूड ही जो है काम में लेना है या ऐसा फूड काम में लेना है विच इज़ प्रॉपरली कुक्ड. There are certain general ways through which we can also prevent diseases. What are those ways? First is we need to take proper care of our personal hygiene. हमें हमारी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है. We need to wear washed and dry clothes. हमें जो क्लोथ्स हैं वो कैसे वेयर करने हैं, दे शुड बी क्लीन, दे शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड. और वी नीड टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें हमारी फिटनेस का जो है वो भी ध्यान रखना है. एज फार एज द गार्बेज इज कंसर्न, तो वी शुड कवर आर डोमेस्टिक गार्बेज एंड आर किचन गार्बेज properly in the dustbin, and that dustbin should have a lid. वो डस्टबिन जो है वो कैसा होना चाहिए, लिड वाला डस्टबिन होना चाहिए. जो हमारा हाउस है एंड जो सराउंडिंग है हमारे हाउस की, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस एंड आवर सराउंडिंग्स. हमें हमारे घर की एंड आसपास की सराउंडिंग्स की क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना चाहिए. देन वी नीड टू क्लिप आवर नेल्स रेगुलरली. हमें हमारे नेल्स जो है उनको रेगुलरली जो है वो कट करके रखना है. एंड जो भी हमारे ईटेबल्स हैं, लाइक हमारा फूड है, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, वो कैसे होने लगे, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, वी शुड कवर दैम. हमें ओपन में नहीं रखना चाहिए. हमारे फूड का हमें स्पेशल जो है वो ध्यान रखना चाहिए. कवर्ड फूड ही हमें काम में लेना चाहिए. इन केस अगर फैमिली में कोई इन्फेक्टेड है, देन व्हाट वी नीड टू डू, जैसे कि अभी जो भी अगर कोई अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो हम देख रहे हैं अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो क्या किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है. तो सेम वे व्हाट वी नीड टू डू, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमको उससे सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा लेनी चाहिए. उसके काम में लिए हुए यूटेंसिल्स, के काम में लिए हुए क्लोथ्स, उसके काम में लिए हुए चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. Most important is water.
We should drink only clean water in case of rainy season. Like during rainy season, what we need to use, we should drink the water which is boiled. चिल्ड्रन की जहाँ तक बात आती है तो वी शुड इम्यूनाइज देम अगेंस्ट द डिजीजेज एट प्रॉपर टाइम पे हमें क्या कर लेना चाहिए, उनको जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है, उनका वैक्सीन वाला पार्ट है, वो हमें कवर कर लेना चाहिए. अदर देन दैट यू नो वेरी वेल अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान विच इज स्टार्टेड और इनिशिएटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. तो वो जो पॉइंट्स जो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आते हैं, वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दोज पॉइंट्स अंडर आवर hygiene, so in case to prevent spread of any diseases. Well, students, our next topic is disease causing microorganisms and viruses in animals. Now we will be learning जो disease cause हो रही है animals के अंदर due to microorganisms and viruses. Well, जैसे animals जो हैं they are useful for us. Well, children, we depend upon animals for our need of food and work. In case if animal is suffering from any sort of disease, so how we will be able to know? We will check the symptoms. What are the symptoms? The animal will become inactive and stop taking food. जैसे human being होते हैं, when we are suffering from any sort of disease, तो क्या होता है, हम भी inactive हो जाते हैं and we also stop taking food. Similarly, same way, animals they also become inactive and they stop taking food. Second, watering in eyes. जो animals जिनमें disease है और जिसमें second symptom क्या होगा, उनकी eyes watery रहेगी, उसमें हमको water दिखेगा. Third symptom, excessive secretion of saliva in animals. Excessive secretion of saliva in animals. Animals के अंदर क्या होगा, जो saliva है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर वो मिल्क यील्डिंग एनिमल है या फिर एग लेइंग एनिमल है, तो जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है या जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो उसमें डिक्रीज हो जाएगी. अगर वर्किंग कैपेसिटी की हम बात करें, अगर हम ऑक्स की बात करें, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी सीवियरली. सो दीज आर द सिम्टम्स in animals in case if they are suffering from any sort of diseases. Well, the diseases in the animals are broadly classified into two categories, the parasitic one and the infectious. Parasitic, they can be both, they can be external or they can be internal. External parasite जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी animal है उसकी body पर के ऊपर रहेंगे और ये क्या cause करेंगे, skin diseases. इंटरनल पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहेंगे. फॉर एग्जांपल वॉर्म्स वगैरह हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, ये इंटेस्टाइन को जो है अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज करने का काम करते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज पर हम आते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, ये ब्रॉडली जो बैक्टीरिया और वायरल डिजीजेज जो होती हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं. तो इसको समझने के लिए इसके जो कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया है या वायरसेस है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है आप बेटर समझ सकेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सॉरी, विद द हेल्प ऑफ द चार्ट डिस्प्लेड. सो आई होप इस टेबल के हेल्प से आपको डिजीजेज जो है वो क्लियर हो गई होंगी एनिमल्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें फुट एंड माउथ डिजीज की, तो फुट एंड माउथ डिजीज जो कि वायरस की वजह से हो रही है, इसमें सिम्टम्स क्या है, इसमें एक्सेसिव सलाइवा जो है वो सीक्रेट होगा एनिमल से. एंड सेकेंड, उसके फुट के यहाँ और उसके माउथ के यहाँ पे रेडिश ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज. व्हाट आर द प्रिवेंशन, हम इन्हें कैसे स्टॉप कर सकते हैं. सो व्हाट are the prevention to stop the disease causing by microorganisms and viruses. So we will be learning this. The first one is proper sanitation. हमें animals के sanitation का भी proper care करना चाहिए. Second, diet. अगर हम डाइट को प्रॉपरली, उनकी जो डाइट है उसको हम वॉच करें, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो स्प्रेडिंग है डिजीज की वो हम स्टॉप कर सकते हैं. अगर एनिमल जो है अगर वो इनएक्टिव है या फिर
वो प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं ले रहा है, तो उस दौरान हमें डाइट क्या कर देनी चाहिए, उसकी हेल्दी उस डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी हमको इंक्रीज कर देनी चाहिए। हमें ऐसी डाइट एनिमल को प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। नेक्स्ट, रेस्ट। अगर एनिमल जो है वो सफ़र कर रहा है डिजीज से, तो वी शुड अलाउ दैट एनिमल टू टेक प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट इज वेटरनरी सर्विसेज है, वी शुड यूज दोज वेटरनरी सर्विसेज। इट इंक्लूड्स डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट। डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोज करना एंड देन उस पर्टिकुलर डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग में हम चिल्ड्रन को वैक्सीन कराते हैं, उनको इम्यून करते हैं किसी डिजीज के रिगार्डिंग, द सेम वे एनिमल्स को भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। So this covers your topic of diseases causing by microorganisms and viruses in animals. The next topic we will be learning is disease causing by microorganisms and viruses in plants. Well, next is disease causing by microorganisms and viruses in plants. प्लांट्स को भी जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। हम ये स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है फॉर फूड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम जो हमारे खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स के ऊपर। कोई फार्मर है, अगर वो कोई प्लांट या कोई क्रॉप है अपने फील्ड में उगा रहा है और उसको जितना आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट वो उससे नहीं निकाल पा रहा है, तो वो उस फार्मर क्या है, लॉस के अंदर है। और हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर जो क्रॉप फील्ड में उगाई जा रही है वो इन्फेक्टेड हो जाती है या डैमेज हो जाती है ड्यू टू वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजली जो प्लांट्स है जो इन्फेक्टेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस की वजह से, वो है वीट, पेडी, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, कॉटन एक्सेट्रा। इनमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है डिजीज का वो कैसे रहता है, डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू सीड्स और थ्रू एयर और थ्रू सॉइल और थ्रू इंसेक्ट्स और थ्रू वाटर। ये आप बहुत बेटर तरीके से समझ सकेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट प्रोवाइडेड टू यू, जिसमें सारी डिजीजेज जो है वो कौन सा प्लांट इन्फेक्ट हो रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट विल बी क्लियर टू यू व्हेन यू विल लुक एट दिस चार्ट। Now comes the prevention. Prevention कैसे, how we can prevent the diseases by sowing disease resistance variety of seeds. हम disease resistance variety अगर फील्ड में यूज करेंगे तो क्या होंगे, उन सीड्स की वजह से जो क्रॉप उगेगी वो इतनी इजीली इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगी इन वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट, बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का, फंगीसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करने से भी हम जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको हम किल कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज़ करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन्हें एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल क्या कर रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का काम कर रही हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो डिजीजेस कॉज हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से एंड वायरसेस की वजह से, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। बात आती है योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो व्हाट आर दे? You know very well what you have to do. You need to keep social distancing. You need to wash your hands frequently with soap for at least 20 seconds. You should sanitize your hand. You should not touch anything which comes from outside of your house. Next, you need to eat healthy food. You need to drink lots of water, and you need to be fit, healthy and safe. Thank you so much.